morning, student. Myself, Priyesh Jha, and I am your chemistry teacher. And today, I will be discuss the topic acids. So, the first topic is acid and sources of acid, types of acid. So, the first topic is acids. So, what is acids? Acid generally are chemically substance or substance having foreign taste or which convert blue litmus into red. उन सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं. सो एसिड्स जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉलिन टेस्ट मतलब खट्टे टेस्ट होते हैं और जो कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में. उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? एसिड. जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें एसिड का तो वी कैन से दैट मैंगो, orange, all are acidic in nature. So some amount of acids are present in this amounts. There are so many compounds which are acidic in nature, but few example we use generally in daily life is mango and orange, sour milk, etc. So next topic is sources of acid. Generally acids are two types. One is obtained organic acids. Organic acids. So organic acids are those acids which are obtained from animal or plants are known as organic acids. For example, acetic acid, formic acid, citric acid. These all are organic acids and these acids are generally obtained from plants or animals. So the next topic is sources of organic acids. Sources of organic acids. Sources of organic acids. So acidic acids generally obtained from vinegar or silica. Next one is citric acid. Citric acid and citric acid generally obtained from orange. Next one is lactic acids and lactic acids obtained from sour milk or you can say that from curd. Another example of oxalic acids. Oxalic acids generally obtained from tomatoes. And last one is formic acids. Formic acids which is obtained from ant sting. So these are the organic acids and then sources are given below. For acidic acids obtained from vinegar or silica, citric acids obtained from orange, lactic acids curd or sour milk, oxalic acid tomatoes and formic acids and stings. तो ये सारे के सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स. नेक्स्ट वन इज minerals acids. So mineral acids are those acids which are obtained from minerals of the earth known as mineral acids. There are mainly four examples of mineral acids are first one is hydrochloric acids having chemical formula HCl. Next one is sulfuric
acids having chemical formula H2SO4 and nitric acids having chemical formula HNO3. So these acids are mineral acids and it is obtained from minerals of earth. जनरली होता क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अ ह्यूमन, बट मिनरल एसिड्स आर वेरी हार्मफुल और डेंजरस फॉर ह्यूमन यूज. सो वी कैन नॉट यूज दिस एसिड डायरेक्टली, वी यूज केयरफुली दिस एसिड्स, बट यू कैन यूज organic acids as a normal manner. So next topic is strong and weak acids. Next topic is strong acid and weak acids. Generally, acids are divided into two categories. One is strong acids and another is weak acids. Strong acids generally होते क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दूसरा क्या बोल सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड्स, नेक्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड्स. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जिसका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. वीक एसिड्स में क्या हो सकते हैं? एसिटिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स. कार्बोनिक एसिड इज ए टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड्स बट इज ए वीक एसिड्स. कार्बोनिक एसिड, it is also a weak acids. So these are the types of strong and weak acids. अगर आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताओ, यू कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स. और वीक एसिड्स में क्या हो सकते हैं? एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड्स, टर्टरिक एसिड्स, एनीवन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज concentrated acids, and next one is dilute acids. So what is concentrated acid and what is dilute acids? Concentrated acids are those acids having solvent in a small amounts. कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें सॉल्वेंट लाइक वाटर की अमाउंट क्या होती है? बहुत ही कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं. और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. इसे क्या बोले कि हम कंसंट्रेटेड एसिड्स. और डाइल्यूट एसिड्स में क्या हो सकता है? हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. तो ये कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं और ये डाइल्यूट एसिड्स होते हैं. डाइल्यूट एसिड्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड एसिड्स बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड्स. अगर सपोज कर लो कि कोई कंसंट्रेटेड एसिड्स है, तो अगर उसको हम डाइल्यूट बनाना है तो उसमें क्या डिजोल्व करेंगे? वाटर. तो वाटर डिजोल्व करने से वो एसिड्स एक्चुअली क्या बन जाता है? हमारा डाइल्यूट एसिड्स बन जाते हैं. बट हियर एक चीज को हमें देखना पड़ता है कि हम वाटर को एसिड में डालेंगे, एसिड को वाटर में डालेंगे. जनरली क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. जनरली इसमें हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है. तो यहाँ पे केयरफुली ये देखा जाता है कि हम वाटर को एसिड में डाल रहे हैं, एसिड को वाटर में डाल रहे हैं. जनरली वी ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड्स. अगर एसिड को वाटर में डालेंगे तो हीट इवॉल्व होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी. बट अगर वाटर को एसिड में डालेंगे तो हीट इवॉल्व होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, जिससे क्या हो सकता है? वो हार्मफुल हो सकता है हमारे फेस के लिए एंड हमारे
क्लोज के लिए, जो कि केयरफुली हमें कंसंट्रेटेड एसिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, डाइल्यूटेड एसिड्स में. सो this is the last topic of today. We will meet with the next topic in the next class, and for today, thank you.